وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ میں اس پر دعویٰ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، اس نے کہا کہ تیرے پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے کہ تو مولوی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو مولوی نہ ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے ان تمام دیوبندیوں کو کافر لعنتی بنا دیا جو عالم نہیں ہے۔ رک جاؤ بھائی صاحب ذرا ایک منٹ، تو نے اپنے بھی تمام دیوبندیوں کو لعنتی اور کافر بنا دیا۔ میرے اوپر بتا، دیکھ، میں تبھی کہتا ہوں دیوبندی بولتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ کھینچ لو، میں تبھی کہتا ہوں کہ دیوبندی بولتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ بھگا دیتا ہوں بے، تم کہاں اوقات رکھتے ہو؟ دیکھ، تو مجھ سے کسی بھی ٹاپک پر کسی بھی طرح سے کسی بھی ڈھنگ میں تو چلا جا، الحمدللہ کبھی مجھ سے نہیں جیتے گا، کبھی بھی۔ اور تو نہیں، دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسی، میں لو کے استعمال میں بات کرنے لگا تو دوڑ لگانے لگا۔ ادھر اس کے اوپر سے لینا ہے نا۔ تحذیر الناس پر انگلی اٹھا رہا، لو کے استعمال پہ دوڑ لگا رہا۔ میں پوچھ رہا لا ہوں، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں پوچھ رہا ہوں لو کا استعمال، لو کے معنی آتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں استعمال لو کا، تمہاری بھتیری لمبائی ہے۔ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ لو کا استعمال اس بارے میں لو کا معنی نفی کے ہیں، لو کے معنی نہیں کے ہیں۔ ارے ہاں تو کیا ہے، تو بتا کیا ہے۔ ایک منٹ علم ہے، لو کا علم ہے، یہ لو کیا بولتے ہیں، لو کا استعمال ہے۔ ایک منٹ اسے یہاں پھانس لیتے ہیں۔ لو نہیں آتا، نو نہیں آتا، پھر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ تو کافر نوتوی کو ابھی تو بچائے گا کہ نہیں بچائے گا یہ بتا۔ گستاخی رسول، تقویت الایمان گستاخی ہے، تقویت الایمان کی عبارت گستاخی ہے۔ پھر میں جب تجھ سے گستاخی میں بات کرنے لگا تو کہنے لگا ہم احتیاط برتتے ہیں۔ نہیں جی، ہم احتیاط برتتے ہیں، یہ احتیاط برتنے لگا۔ لیکن تو انور کے سامنے کیا کہہ رہا تھا کہ کیا بولتے ہیں ہم اس کو گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہے تقویت الایمان۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ گستاخ ہیں۔ اس دن کہنے لگا، اور جب میں پوچھا تو کیا بولتا ہے کہ ہم گستاخ نہیں کہتے جی، ہم تو کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں گستاخی ان کو نہیں کہنا چاہیے، گستاخی میں۔ ارے گدھے جھوٹ بول رہا ہے، خدا کی قسم کے میں نے اسی طرح سے کہا، خدا کی قسم، اسی طرح تو نے کہا ہے کہ کیا بولتے ہیں ہم گستاخ۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہو اس پر جو جھوٹ بولے، یہی ہے جو جھوٹ بولے، اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ آپ دونوں میں سے کہو آمین۔ سنا بھائی، دیکھ رہے ہیں اس کی گفتگو، یا تو یہ ہے دیوبندی نہیں ہے۔ ارے وہ جتنی اس نے باتیں لکھی ہیں اس نے، اس پر جھوٹ بول رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہو جو جھوٹ بولے اس پہ کہ جس نے ایسی بات۔ انور کے پاس فون لگا، تیرے پاس نمبر فون لگا، ذرا اس سے تو نے کیا کہا؟ بس ہو جی، عرب سلیم کیا کر رہا ہے؟ لگانا انور کے پاس فون، کہاں ہے یا نہیں کہا ہے تو نے، وہ خود بتائے گا۔ پنڈت جی سے لے لیں۔ نہیں پنڈت جی نہیں، ہم تو جو گاڑی لوڈ کرتے تو پوچھ لو، پھر پوچھ لو ان سے، بلا لو انہیں۔ وہی دنگے بھی کرنا۔ ہاں مجھ سے کیوں نہیں کہہ رہا کہ اسماعیل؟ ارے میں کام میں لگا ہوا ہوں تو یہ دیکھ میری، ہاں مجھ سے کیوں نہیں کہہ رہا کہ اسماعیل بول دے؟ پنڈت جی کے گھر کو آپ ادھر کو چلیے۔ جو بات تو نے انور سے کہی تھی وہ انور کی بات مجھ سے کہا، تو نے کل بھی جواب نہیں دے پایا تقویت الایمان کے اوپر۔ پھر میں نے تجھ سے سوال کیا، پھر میں نے بولا تو جواب نہیں دے پائے گا تقویت الایمان کے اوپر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو۔ خیر چل، تیرے گفتگو کو تمام لوگ سنیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ میں بھی بات کر رہا ہوں، تو بھی بات کر رہا ہے نہ، تو نے اس گفتگو میں کوئی جواب دیا ہے؟ قاسم نانوتوی کو تو نے کافر کہہ کر اس عبارت، ایک منٹ، جو یہ عقیدہ رکھے کہ ابھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، اس عبارت پر تو نے کفر کا فتویٰ لگا کے پر بھی بھاگ رہا ہے، تقویت الایمان پر بھی تو توڑ لگا دیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
देख तूने काफिर नानोतवी को अरे सुन तो, अरे तूने काफिर नानोतवी को अभी तक मुसलमान साबित नहीं किया, मगर तूने कल ये कहा था कि अगर जो भी इस तरह की बात कहेगा वो काफिर होगा। क्या बोलते हैं अपना बड़ा बुजुर्ग। खैर अब तू बौखला गया, सुन अब तू बौखला गया, अब तेरे पास बौखलाहट के अलावा कुछ है नहीं। बौखलाहट तेरे पास है? नहीं, मेरे पास बौखलाहट नहीं, मैं काम में लगा हुआ था। सुन तो इस वजह से आया क्योंकि तूने अनवर से बोला कि क्या बोलते हैं ये तकवीर। देख सुन और जब हम जो एहतियात बरतते हैं, हम जो सुनेगा ही नहीं, हम इसलिए एहतियात बरतते हैं कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। कल भी मैंने तुझे यही बताया। क्यों एहतियात नहीं बढ़ता? ये इबादतें गुस्ताखाना है या नहीं बता? मैं यही पूछा रहा कि अनवर के सामने तो गुस्ताखी के ये इबादतें गुस्ताखाना है या नहीं है ये बता मुझे। ये बता मैंने देख सुन सामने तूने क्यों नहीं बोला कि हम इसको गुस्ताखी बोलने में बरतते हैं? ये देख थानवी को मैं काफिर मानता हूँ, नानोतवी को काफिर मानता हूँ, गंगोही को काफिर मानता हूँ। पर तूने ये क्यों कहा था? मुझे पहले अनवर की बात का जवाब दे कि चल अनवर की बात पे ये क्यों नहीं कहा कि हम वो क्या बोलते हैं इनको गुस्ताख नहीं कहते, हम गुस्ताख बरतते हैं। चल तो मुझे ये दिखला, चल तो मुझे तो ये दिखला, मैंने उसमें कहा क्या था? चल आज एक और झूठ तेरा पकड़ा जाएगा। हाँ बता मैंने इस्माइल दहलवी को क्या कहा था? चल बोल। इस्माइल दहलवी को जो मैंने जुमले कहे हो वो पूरे वही बताना, वरना ये पूरा ऑडियो और उसको दोनों को एक साथ मिला के डालूंगा फिर से दोबारा से इंशाल्लाह। मुझसे कहा था नहीं, तुझसे छोड़ मैंने अनवर से क्या कहा था? चल बोल। अनवर से मैंने क्या कहा? अनवर भाई इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गुस्ताखी देखो, जब ये गुस्ताखी है तो इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने तूने अनवर से ये क्यों नहीं नहीं मैंने क्या कहा उससे? तू सैम जुमले बोल, तू सैम जुमले बोल कि ये गुस्ताखी है, ये गुस्ताखी साफ कह रहा। तूने अनवर से क्यों बोला? अरे मेरी बात तो सुन, देख तू फिर फिसलने लगा। मैं तभी तो कहता हूँ देवबंदी धर्म की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई है। देवबंदी लोग झूठ ना बोले धर्म नहीं चलेगा। अरे भाई आप दोनों में से ही लाइन पे हैं या नहीं देख लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ वही जुमले इस्तेमाल करो जो मैंने इस्माइल दहलवी को कहा हो, तो ये बोल नहीं पा रहा है। इधर सुन जो तूने कहा था ना गुस्ताखी का लफज, मैंने गुस्ताखी का लफज कहा तो किसको कहा? मैंने गुस्ताखाना इबादतें बताई या फिर उसको कहा? ये बोल। तो मैं ये गुस्ताख कहा रहा कि ये गुस्ताखी है, ये क्या बोलते हैं इनकी पूरी किताब गुस्ताखी है। जब इनकी किताब गुस्ताखी हुई तो लिखने वाला गुस्ताख नहीं होगा? देख मैंने कल भी कहा था। हाँ कितना 44-10 हो गया ना, ठीक है। लिखने वाला गुस्ताख नहीं होगा? मैंने तुझे कल क्या कहा था? तो उसने जो गुस्ताखियां की थी, जो कमियां की हैं उसने तकबीरतुल ईमान में, उसको एहसास हो गया था। फिर इसको क्यों ये नहीं कहा? अनवर से ये क्यों नहीं कहा? तूने मुझसे पूछा है ना, अनवर से क्यों नहीं कहा? खाली अनवर से मुझे 20-60 कर दो। ये क्यों नहीं कहा? हेलो मुझे अनवर से क्यों नहीं कहा? अरे जो मेरी बात से बात हुई है वो मैंने कहा। मैं तो थानवी को भी काफिर कहता हूँ, नानोतवी को भी काफिर कहता हूँ। अब इन पे जिस पे तेरा दिल चाहे तू बहस कर ले, बात खत्म हो गई। तकवीयतुल ईमान पर तूने उससे ये नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहा? अरे मैंने ये कहा था ना कि ये गुस्ताखाना इबारतें हैं, मैंने ये कहा था ना कि ये गुस्ताखाना इबारतें हैं। गुस्ताखाना इबारत जो लिखी है वो गुस्ताख होगा या नहीं होगा? तो उसने जो है अपनी गलती का एहसास किया। अब हो सकता है कि उसने तौबा की हो, ठीक है। अरे तू जिधर भी चलेगा ना तेरी चलेगी नहीं। उसके पास किसके पास? उसके पास वो अनवर के पास। अरे जमाना हो गया उससे बात किए हुए, मेरे पास नंबर रखा बेचारे का उसका। अच्छा जमाना हो गया, जमाना हो गया। अच्छा तेरे पास नंबर है? अच्छा मैं तो जानता ही नहीं हूँ, वो तेरी वीडियो की वजह से मैंने फोन लगाया था। अच्छा वो तेरी जमात का होगा, वो तेरी जमात का होगा। चल खैर तेरी तो ये फितरत है तेरी जमात की कि जो देवबंदी शिकस्त खा जाता है और जो देवबंदी समझ जाता है कि हाँ वाकई ये देवबंदियों की किताबें गुस्ताखाना है, कुफर की बातें भरी पड़ी है इसमें। वो बता अभी तेरे को लव का इस्तेमाल मैं पूछ लिया। अरे यार फिर वही बात। अच्छा एक मिनट मायने आते हैं। तूने शुरू में मुझसे इस्तेमाल तू बोल रहा है, सुन शुरू में जब इस्तेमाल तो तू बोल रहा माना। सुनो तूने शुरू में जो कहा था मुझसे कि आप कौन है, मैंने तुझे क्या बताया? आलिम बताया था। क्या शुरू में जो तूने रात में कॉल किया, हाँ मैंने तुझे अपने आप को आलिम बताया था या ड्राइवर? हाफिज नहीं बतलाया था। मैंने हाफिज कहा था अपने आप को? 8 साल क्या किया? एक मिनट मैंने अपने आप को हाफिज कहा था? नहीं
सुन मैंने अपने आप को हाफिज कहा? इधर सुन, पहले मेरी बात करे बाप दे। हाँ से तो 8 साल तू, अरे फिर वही बात मैंने, मुझे ये बता दे 8 साल तूने क्या किया? तू मुझे ये बता, मैंने तुझे हाफिज कहा? 8 साल क्या किया तूने? 8 साल किया मैं? मुझे ये बता। अरे मेरी बात तो सुन, तू यहाँ भी झूठ बोला। अरे कितना झूठ बोलोगे तुम, ये बताओ। जहाँ भी मैं तेरी पकड़ करता हूँ वहाँ से रपट जाता है, जवाब नहीं दे पाता। क्या बात है यार? तू देवबंदियों में नहीं पढ़ा? मैंने जब तेरे से ये पूछे कि तू देवबंदियों में पढ़ा है तो मदरसे का नाम बता, बोलते तू जानेगा नहीं। अरे मैं जानू या ना जानू, तुझे नाम तो बताना चाहिए ना। मैं बता चुका हूँ ना पहले ही, पूरी मेरे को बताया। मैंने तुझे उस दिन कहा भी था, लिख ले, कॉपी कलम ले ले। सुन कल मैंने पूछा रहा तो भाग दिया रहा, नाम नहीं लिया तूने। हाँ मालूम था, मैं पंडित जी जानता हूँ कि तू अच्छे से बरेलवी कट्टर था, और जो तेरे अंदर बुगस भरा हुआ है उलमाए देवबंद के बारे में, तो उस बुगस की बिना पर, बल्कि इल्म की अगर तू इल्म की बिना पर इख्तिलाफ, अरे ये क्या कह रहा है? कोई एतराज नहीं होता। अगर तू इल्म की बिना पर इख्तिलाफ करता तो मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं होता। लेकिन क्या बोलते हैं, तूने बुग्स की बिना पर किया, वो बना दिया। सुन रहा है ना? मैं आगे करूँ फिर? चलो नीनार बना दो इन्हें। अभी तुझसे यही पैसे हैं कुछ? मैंने तुझसे पैसे हैं कुछ? पैसे बोलते? अरे इधर सुन बे, मैंने ये पूछा तुझसे कि क्या बोलते हैं तू किस मदरसे से पढ़ा, वो भी जवाब नहीं दिया। बोल दिया नहीं मैं पढ़ा हूँ, तुझे क्या पता चलेगा? अरे मैं पता चले या ना पता चले, तुझे बताना तो चाहिए कि मैं देवबंदियों के इस मदरसे से पढ़ा हूँ जिससे देवबंदी बोलते हैं। अच्छा, बड़ा बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलता है। अबे तू बरेलवी में ही पैदा हुआ। अच्छा तेरी भड़ास निकल गई? इंशाल्लाह मरेगा। अच्छा तेरी भड़ास निकल गई, अब सुन के जा। ये भड़ास नहीं है, ये हाँ, भड़ास नहीं है। अब सुन, मैं कहाँ पढ़ा था? सुन अब सुन। हाँ, मैं पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट रामपुर, टांडा बादली। एक से बता, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग कर। धीरे धीरे रिकॉर्डिंग चली रही है, वो एक धीरे धीरे बता, आराम से एक लफ्ज के साथ। जो जिला है, जिले का नाम है रामपुर, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट रामपुर, और डिस्ट्रिक्ट रामपुर में पड़ता है टांडा बादली, जो कि दारुल उलूम देवबंद का पूरा समझ लीजिए वो शाख है। सारे के सारे टोटल वहां देवबंदी है, समझ लो, ठीक है? पूरे जगह पूरा टांडा देवबंदी है, और वहाँ बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं। और जिस मदरसे में मैं पढ़ा था उस मदरसे का नाम है जामिया इस्लामिया, ठीक है? और उस मोहल्ले का नाम है पिछला मोहल्ला, और उस मोहल्ले की मस्जिद का नाम है मोहल्ला मस्जिद कोहना, ठीक है? और मेरे उस्ताद का नाम है, जिनसे मैंने नाजरा पढ़ा था, हाफिज मुनव्वर। जिनसे मैंने उर्दू पढ़ी उनका नाम है मौलवी मुनव्वर, और जिनसे मैंने हिफ्ज के लिए बैठा उनका नाम है मौलवी अकील। अब बता, हेलो, ये बता कितने साल पढ़ा, ये भी बताते थे जो बताया है ना तूने। हाँ मैंने शुरू से मैं गया और मैंने वहां पढ़ाई की है 10-11 साल, ठीक है? उसमें 4-5 साल मेरी मुसलसल तबीयत खराब रही है। कभी आता था, कभी जाता था, कभी आता था, कभी जाता था। पारे भी मेरे कच्चे हो गए थे जो मैंने हिफ्ज किए थे, समझ रहा है? फिर उनकी दौर निकाली, मतलब इसी तरह से सब बर्बाद हो गया। फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई, मेरा दिल भी मतलब भर सा गया, ठीक है? पूरी बातें सुनते रहना। मैं चल भी रहा हूँ, मेरी आवाज शायद जो है मतलब चलने ही वाली आ रही होगी। अरे यार ये टूटेगा तो नहीं भाई, समझा? अब आ गई बात समझ में तेरे? हेलो, हाँ सुनाते चलो ना। मैं अब बात हो रही इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, तो अब बात समझ में आई? हाँ बात समझ में आ रही हो, बताते तो चलो। क्या अब हो गई ना मेरी बात पूरी? मैंने कहाँ पढ़ा था? पूरी बात। 11 साल पढ़े, अब 11 साल में अपने जहन को तू देख खुद, अकल तेरे पास अकल है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अकल दी है। खुद देख तू कि क्या बोलते 11 साल तूने पढ़ा तो तेरे पास न नाजरा का इल्म था, न हिफज का इल्म बचा, किसी चीज का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा साल बर्बाद हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमजानुल मुबारक में तरावी भी पढ़ाई है। फिर तरावी के बाद मैंने अपना ऑपरेशन भी करवाया है। तू ये बता, अल्लाह तुझे कबूल किया या मुझे कबूल किया है? अच्छा ये बता, किसे कबूल किया? देख ये बता, तू जाहिल जो है वो जहन्नम में जाएंगे? जो जाहिल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो जहन्नम में जाएंगे?
जाहिल गुमराह नहीं करते लोगों को? पहले मुझे बता दे। जाहिल गुमराह नहीं करते? नहीं, मैं वो इंसान हूँ। एक मिनट इधर सुने, एक मिनट। हदीस मुबारका में कि क्या बोलते हैं, मेरे जमाने के आखिर में ऐसा भी होगा कि क्या बोलते हैं कि क़यामत की निशानियों में से कि जो जाहिल होंगे वो बड़े तख्त में बैठेंगे और फतवा दिया करेंगे। और तू फतवा दे रहा है? अच्छा, तू आलिम है? साले जाहिल है। और तू आलिम है? तू आलिम है ना? मैं आलिम का कोर्स कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोर्स कर रहा तो तू आलिम है, ये बता मुझे। अभी तू आलिम है? मैं आलिम का कोर्स कर रहा हूँ। तू है आलिम, मुझे ये बता। मैंने फतवा दिया किसी के ऊपर? अरे तो मैंने कौन सा दिया? मैंने कौन सा दिया? के ऊपर तो दिया ना तूने, उस पर के ऊपर तो दिया ना, उस पर उलमा ने लगाया है। उसमें उलमा में लगाया है तो वही उलमा को बोल कि क्या बोलते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पर क्यों फतवा नहीं लगा रहे? तुमने तक़वियतुल ईमान के ऊपर लफ्ज़ मर पर ये जो कुरान का मौत पे सुन ज़ाइक़तुल मौत से तू क्या समझ रहा है? क्या माना ले रहा है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत से तू क्या समझ रहा? पहले ये बता। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी इस दुनिया में मखलूक है, जो भी चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है उसको नापैद होना है, ठीक है? मगर इस नापैद में भी बड़ा फर्क है, ठीक है? अच्छा, इंसान और जिन, ये दो ऐसी हस्तियां हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब लेगा। पहले सुन ले। पर तावील कर रहा है तो हजरत जी की इस तहरीर पर तावील क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, तू तावील करके बता दे ना मुझे। मैं तावील करके बता तो रहा हूँ कि इनसे क्या बोलते हैं मरने, क्या बोलते हैं मिलने से मुराद क्या था? हजरत जी ने जो तूने ये कहा कि क्या बोलते हैं मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, एक मिलना तो इत्तिसालन था, इत्तिसालु शैइ बिशैइ, समझ रहे हैं ना? इत्तिसालु शैइ बिशैइ, किसी चीज का मिलना किसी चीज के साथ, मजाजतन और हकीकतन, या तो मजाजतन होता है या तो हकीकतन होता है। और अच्छा, ये बता इससे क्या मुराद लिया तूने? एक मिनट, इससे क्या मुराद लिया? थोड़ा इस तरह समझा दे मुझे। लिया कि मिल जाने से मुराद मैंने लग जाना लिया है। किससे कहता है लग जाना? एक मिनट। हाँ, मैं ये कहूँ कि तेरा नाम क्या है? आरिफ। मेरा नाम आरिफ है। अच्छा, ठीक है। मैं ये कहूँ ये डंडा, मैं डंडे का नाम ले रहा हूँ, कटहल का नाम ले दूं या? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये डंडा आरिफ में गया। अच्छा, हाँ, आरिफ में गया या आरिफ पे गया? हाँ, इन दोनों में कितना फर्क है, जरा बता। कितना फर्क? आरिफ में गया और आरिफ पे गया। मैं तेरे पास इबारत सामने रखा, मरर तू, पहले मेरी बात का जवाब दे। मरर तू भी जैदिन, मैं गुजरा जैद के साथ, यानी जैद मुझ में घुस गया, मैं जैद में घुस गया। पहले मेरी बात का जवाब दे। ये कटहल या डंडा? तेरे उस्ताद आएंगे, तुम मिलने जाएगा या क्या बोलते हैं उनके? ना, पैसे थोड़ी लाना उससे। पैसे तो नगद दिया अकेला। अच्छा, नगद है। ये नारा रखो या अलग रखो पर्चा। लाओ कुछ पैसे पड़े तो पैसे क्यों नहीं देगा इतने जो है ना तुम पे? पैसे अरे देख रहे हो काम चल रहा है पड़े मत दे दो। पैसे हैं का? दे दो यार, तेल पड़वा लो। हेलो, हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं देखो बड़ा कोई नोट पड़ा हुआ है, जाऊं? चलो हाँ ठीक है। अच्छा, अरे हाँ, ये क्या कह रहे हैं? इन्हें तो समझो, कह रहे हैं पैसे दो यार, जाओ। ये है ना है मेरे पास, तुम दो इन्हें पैसे। जी भाईजान बोले जरा। मैंने कहा ये कटहल लिया देख। मेरी बात सुनो यार। उस्ताद तेरे पास आए तो उससे तू मिलने जाएगा, तो मिलना तेरा ये कैसा होगा? नहीं, हाँ मैं वही समझा रहा हूँ। देख, एक तो है मट्टी से मिलना और एक है मट्टी में मिलना। तो ये मट्टी से मिलना और एक है मट्टी में मिल जाना। हाँ, तो दोनों में मैंने एक मिनट, अरे सुन तो, अरे पहले मेरी बात तो सुन ले। एक है मट्टी में मिलना और एक है मट्टी से मिलना, ठीक? अब मैंने तुझे कहा कि ये कटहल आरिफ में गया या आरिफ पे गया, इन दोनों में कितना फर्क है? आरिफ पे गया और है, आरिफ में गया और है। अरे किसी अब लोग समझदार लोग इसको समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। कितनी बड़ी बेवकूफी की। अरे अगर किसी की बेवकूफी नहीं है, इधर सुन,
कोई किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसके घर में क्या बोला जाता है कि मिट्टी हो गई, यानी वो आदमी मिट्टी बन गया। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए मुझे आप और आप देखिए, मैं अरे सुन मिट्टी बन गया। बात को सुन, इंसान मिट्टी से पैदा है ना। हाँ, मगर मेरे आका को भी तो यही कहेगा, मेरे आका को भी तो यही कहेगा, मेरे आका तो अल्लाह के नूर से पैदा है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी से बने, लेकिन तेरी मिट्टी और मेरी मिट्टी में फर्क था। अरे मेरे मेरी मिट्टी हमारी मिट्टी और आका की मिट्टी में फर्क था। सुन रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तेरे घर के मौलवी, चलो अच्छा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? नहीं एक कौन काट दिया? मेरे घर के मौलवी रास्ते पर आ गया, हाईवे में पुलिस वाले खड़े हुए हैं। अच्छा चल ठीक है, तेरी ये भी वो मान लेता हूँ, चल।